Hope my screen is visual, right? Or not? Yeah. Okay, guys. No. So, guys, what happening? So, since we are knowing that, means there is a copy command used to load the data, right? With the in the means from file to tables, right? Please tell. Yes, sir. Okay. So, copy into table from stage, right? So, copy command is used to load the data or to keep the data into the tables, right? So what is going to happen? Suppose, so what is syntax of copy command? Copy into table name, okay, from stage, and then we have to provide the file name, okay. Suppose there are very n number of files, so we can keep in one folder only and load it, right? And file format is what we need, we have to provide it. So can anyone can check right now? Meanwhile, I'm telling we can do it right now only, okay. So what is going to happen? Suppose there are three files we have, right? And if you want to load these three files, but pattern must be same, the ddl of the file data must be same, right? Other then it's going to be loaded, right? While inserting the table, when inserting the data into the table, what we the structure of means Like appending or union? sorry, Is it like appending or union? it's not appending, yeah, it's a appending only, means it will append, okay. Okay. Okay, One after another, right? yes, one hour or one after other another. And the thing is that I already mentioned, right? Means so file format, that day Ragini, we have noticed that suppose any error came, right, while loading the data. Since we are doing in very huge, very small, very means tiny data, right? Very tiny in the words we can use Yes. it. Yeah. Very means tiny data here. Uh, but in real time, you can't believe it. Means I have a means uploaded approx 50,000 million records. Okay, means Yes. I was used to means one table is used to take approx 37, means one file used to take 37 to 38 hours to load it. You can imagine it. And in 1 hour, it is means in 1 hour there are 2.5 GB data is going to be means transfer, right? So you can imagine the size of the table, right? Size of files. So, suppose any incident happen and we are loading the data, and there might be some server issue happen, something happen. If you are not going to command this, right, the copy into command, if you are not going to manage the copy into command, then it's a very difficult to load the data, right? Means every time something is going to happen in huge file is going to happen 36 hours, 38 hours, 20 hours, 10 hours, each file is going to be, might be means if we are transferring the file in our local system also, you have noticed that, right? You have noticed that sometimes what happened, some error came, again we have to copy them. Means suppose 1 hour it took, and then again we have to start from the beginning, right, to load the data, to transfer the data from one laptop to mobile or mobile to laptop. Some means someone has some shaking happen in mobile, means then your means connection is lost, and again you have to perform the same thing. The error came, and the automatically the means transmission is going to stop. Okay, so but in real time we have to manage these things, right? Suppose any error happen in while means loading the data. So if we are not going to handle this error, someone have learned PL/SQL here. Yes, sir. So exception you have So, means, right? no. Exception you have heard about that, right?
Yes, sir. Yeah. So exception is used to means capture the error and means to handle it, right? Yes. And again, right edge. Yeah. So in same way means we have to manage this thing, right? We have to manage this thing. So cop now what is going to happen? So for managing this thing, we have a copy option command, right? So there is a validation mode, there is a return failed only, there is a on error, there is a force, there is a size limit, there is truncation, there is a force in force lane, there is a purge and load or uncertain file. These are the copy options. Copy options. You will see how we are going to work with delete. So suppose if we are going to use the validation mode, how it is going to happen? What is the syntax? Copy into table from stage name, right? File, and then we have to specify the file format. As of now, everybody has done this till now, right? Hello. Yes, Santosh. So Yes, sir. till now, as of now, this much means you have used this syntax, right, to load the data. Yes. Huh. Then we have to suppose we are going to learn validation mode, right? Validation mode, right? So in Yes, sir. validation mode, what is going to happen? Here means uh, three things is going to happen, right? Means two possibility. One is return and row, return error, and return all error, right? So if we are going to use these keywords, validation underscore mode equal to return and row, pipe, return underscore error, and return all error. So what validate mode do? Validate the data file instead of loading them into the table. Suppose if you don't want to load the data, you need to validate it, right? Suppose you have to check it, otherwise it check. Loading data is take time, but means means checking it very fast, little fast, right? Testing it. So before loading we can check it, the validate the data, right? So for validation mode, what these three commands used to do: return error gives all the error in so files. Suppose any file, these two files we have uploaded, and if you're going to run this much, only this much means still validation mode, return and rows, what will give? Display the and records and means first and records and fail at the first error record. It will take from starting, it will start loading the data, it will start testing the data, validating the data, and once the error come, it will give first error, right? Yes, sir. Okay. Then return all error, give all the error from previous loaded files if we have used on error continue. Okay. So what will do means all error will return all error, gives all the error. Suppose somebody have loaded means error means wrong data, right? By force they have written means on error, there is a one command is also there. If you write means file format on error equal to continue, whatever the error, data is going to load it, they will not stop. Got it? Forcefully you are going to load the data, but some inspection you want to do it, right? Some inspection if you want to do it, so what is going to do it? What you have to do it? You have to run return all error, gives all error from the previous loaded files if you are, if we have used on error continue, right? Got it? Got it or not? Yes. Okay. Now
Return gives all the error in the files. If you give returns all underscore errors, it will gives returns all error in the file. Whatever the error in the file, before loading they will see these are the error, and you have to fix it before loading it. You can fix it before loading. Got it? So use of validation mode before loading the means validate the data file instead of loading into the table. Once the validation is correct, then you can load the data, right? It will not accept, make an issue. Huh? Any question? Yes, sir. Yeah, tell me. Yes. जैसे सर हम डेटा को लोड ना करें तो खाली हम वैलिडेशन कर सकते हैं क्या? किसी फाइल को चेक कर लें खाली हम क्या लोड मतलब, ना नहीं करें। समझा, मैं फिर से बोलूं, आवाज। जैसे कि सर कोई हम फाइल लोड कर रहे हैं हाँ तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको लोड ना करें, सिर्फ उस पर वैलिडेशन हाँ, वही लगा वही के उसे वही चेक तो करें। वही तो लिखा हुआ है ना, देखो आप देख सकते हो, वैलिडेट द डेटा फाइल्स इंस्टेड ऑफ लोडिंग इनटू द टेबल। ओके, ओके। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइल सही है। हाँ हाँ, मतलब फाइल सही नहीं है, अगर ये डेटा लोड करेंगे तो हमको क्या क्या एरर मिलने वाले हैं, आप जाके देख। इफ यू आर गोइंग टू रन दिस कमांड, you will get the error and you can fix before loading it. अच्छा। Then you can perform the loading, right? So next command is return underscore failed underscore only. Okay, so copy into, still here there is no difference, right? Yes. Then return underscore failed only equal to true or false. Okay, by default it is false. So what is do, it specify whether to return only files that have failed to load in a statement result. Okay, it will specify the file, whether to return only files, ऐसा फाइल have loaded to the load in the statement, कोई भी जब लोड करते समय वैसा फाइल को, मतलब जो फेल हो गया, और returns only files that have failed to load into the statement result. Okay, so the file, it will, what is going to do means it will check, suppose this file is this file 2. Okay, file 1, file 2, so it will return this one. Okay, suppose if you make it false, nothing is going to happen. If you made it true, it will give it this much. It will specify whether to return only the files that have failed. So it will give the file number 2. If it failed, it will give the name of file 2. Got it? ये वाला सिंटैक्स हम कब लोड रन करेंगे, मतलब कमांड कब रन करेंगे, डेटा सपोज लोड करो होने के सपोज बाद? सपोज हाँ। करो कि मतलब हम डेटा लोड कर रहे हैं, और बहुत सारे फाइल्स को लोड कर रहे हैं, तो हम इसको भी लिखा लगा देंगे रिटर्न फेल्ड ओनली। जो डेटा, जो फाइल फेल हो गया उसको दिखा दो हमें, तो हमको समझ में आ जाएगा ना, ये बाकी इतने 100 फाइल थी मेरी में 5 फाइल फेल हो गया, 95 फाइल मेरा सक्सेस हो गया। अच्छा, तो जब हम वैलिडेशन कर रहे हैं वो वाला कमांड दे रहे हैं, उसके साथ ये वाला अगर लगा देंगे तो सारा एक साथ ही दिखा देगा, राइट? वैलिडेशन करेंगे तो फिर क्यों लगाएंगे इसको, इसको डेटा लोड करेंगे तो तब वही लगाएंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब ये वाला वैलिडेशन करने के बाद मतलब ये कब करना है? वो तो वैलिडेशन मुझे समझ में आया, ये कब करना है? रिटर्न फेल ओनली जो वाला कमांड, जब कभी फाइल अगर को लोड, वैलिडेट कर कोई दे। किसी हम्म। फाइल को लोड करेंगे तब। अब लोड भी हम वैलिडेट कर दिए, फिर भी हमको डर लग रहा है कि कोई फाइल, इतनी फाइल्स हैं हमारे पास, अब होगा कि नहीं होगा, कौन सा फेल हो गया, तो हमको दे देगा ना कि भाई ये सब फेल हो गए हैं, बाकी सब लोड हो गए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे हमने कुछ फाइल्स को वैलिडेट कर ली तो सर क्या फिर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनमें एरर हो?
ऑफकोर्स हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है कि बहुत सारे होते हैं, सर्वर इशू हो जाते हैं, नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कोई फाइल रिप्लेस हो गया, सपोज करो तुमने तो कोई नाम देखा कोई में रिप्लेस हो गया उसी फाइल का नाम दूसरे चीज, उस समय क्या करेंगे हम? ठीक है। बेसिकली ये मतलब डबल चेक करने के लिए कि सही से सब कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा। यस संतोष। ओके, नेक्स्ट इज ऑन एरर। ऑन एरर ऑलरेडी सेम। सो सपोज करो हम जब ऑन एरर कमांड यूज करेंगे कॉपी ऑप्शन में, तो फाइल फॉर्मेट ऑन एरर कंटिन्यू कर देंगे, स्किप कर देंगे, स्किप फाइल नम कर देंगे, ये इस पे बहुत सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। सो अगर कंटिन्यू कर देंगे तो ये एरर को स्किप कर देगा एंड लोड द रिमेनिंग रिकॉर्ड्स। सपोज करो 5-10 लाइन की हमारी रिकॉर्ड्स हैं, 10 रोज हैं हमको लोड करने के लिए टेबल में, डेटा में, उसमें किसी में कि में एरर हो गया, उसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट रो फिर से अपलोड कर देगा। गॉट इट? यस। यस। अच्छा। ऑन एरर स्किप फाइल जब कर देंगे तो अगर 100 फाइल है हमारे पास, उसमें से जिसमें जिसमें एरर होगा उसको स्किप करते जाएगा, बाकी लोड कर देगा। Guys, this completely depend upon the means scenario, how your means at the scenario, how you have to load the data, in which scenario you have to load the data, what are the problem you are facing, and what commands you are going to use, in that times you are able to get it, right? उस समय यूज करेंगे। हम कोई फाइल लोड कर रहे हैं और हमारे लिए क्या मतलब उस समय कुछ इशू आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये कॉपी कमांड के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम उस समय सिनेरियो के हिसाब से करेंगे, एरर क्या आ रहा है, कैसे हमको इसको फिक्स करना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है स्कीप फाइल नम। स्कीप फाइल नम क्या करता है? स्कीप ए फाइल व्हेन द नंबर ऑफ एरर्स रो फाउंड इन अ फाइल इक्वल और एक्सीड स्पेसिफाई। अगर तुम कोई नंबर दे दिया, सपोज करो इसमें ये भी है कि हम कह रहे हैं कि एक 5, अगर 5 रिकॉर्ड्स मेरे गलत हो रहा है तो 5 रिकॉर्ड तक हम एरर आ रहा है, किसी फाइल के अंदर 5 एरर तक गलत आ रहा है, गलती हो रहा है, 5 रिकॉर्ड्स लोड नहीं हो रहे हैं, अगर बाकी रिकॉर्ड लोड हो रहे हैं तो हमको करने देंगे। और तो ठीक है, अगर नहीं हमने कह दिया कि नहीं एक रिकॉर्ड सिर्फ होना है चाहे 0 होना है, तो उसमें उसके सिनेरियो में क्या करेगा, कोई भी फाइल अपलोड नहीं करेगा। उस सिनेरियो 5 तक देखेगा कि 5 तक नहीं होगा तो हम करेंगे, 5 तक होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, 5 के बाद होगा तो ये फाइल को लोड नहीं करेगा। उस फाइल के अंदर 5 एरर आ रहे हैं तो नहीं करेगा, 5 बार एरर आ गया मतलब ये हमारे CSV फाइल। संतोष इसमें अपन एक बार में मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कि इसमें अपने पास है ना ऑन एरर में कंटिन्यूअस स्किप, तो एक ही यूज कर सकते हैं या 2-3 यूज कर सकते हैं या फिर फाइल के हिसाब से ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मतलब हम 2-3 इस सिंटैक्स में बोल रही हो, इसमें कर इसमें बोल रही हाँ हो? हाँ हाँ। इसमें हाँ क्या उसी इसमें सिंटैक्स में। हाँ कर सकते हैं, इसीलिए पाइप लगाया हुआ है ना। लेकिन वो तो जहां तक कि मैं मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि वो एक ही फॉलो कर सकता है ना। जैसे हाँ कि एग्जांपल अरे अपने पास में अरे 10 फाइल है ना, हाँ हाँ तो तो वो किसी एक को ही फॉलो करेगा ना। अगर कुछ एरर हाँ है अपन ने उसको बोला कंटिन्यू तो हाँ कंटिन्यू ही तो करेगा, इस या तो इसकी मतलब इसमें से एक को ही यूज करेगा। नहीं, हाँ इसमें मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारी सिनेरियो क्या है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के अंदर या तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, नहीं तो अबॉर्ट कर सकती हो, समझ रही हो ना, नहीं तो हम्म। स्किप कर सकती है, हाँ दोनों एक ही यहाँ तक साथ कि कैसे समझ कर में आ सके? गया। दोनों कंट्राडिक्ट हो हाँ जाएगा ना फिर हाँ एक दूसरे से, मतलब। हाँ, दोनों में से कोई एक ही कर हाँ सकते हैं हाँ।
इतने में से? बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एबॉर्ट स्टेटमेंट होता है, ये ऑन एरर में एबॉर्ट, हाँ। एबॉर्ट स्टेटमेंट होता है, कुछ नहीं भी लिखोगे ऑन एरर लिख दिया, तो ये फ़ाइल को ये कर देगा, कोई भी एरर आएगा लोड नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरफ से स्किप फाइल हम्म। नम परसेंटेज, अगर बोलेगा 80% डेटा हमारा, अगर 10% डेटा हमारा रॉन्ग रॉन्ग आ रहा है, यहाँ हम नंबर में दिखा रहा था, इसमें दिखा रहा है किसी फाइल में 10% रॉन्ग हो रहा है, 20%, ये तुम्हारे बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कितना एरर तुम मतलब हैंडल कर पाओगे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में होगा। हो गया। लेकिन एरर कैसे सेट करेंगे? उसको कैसे पता लगेगा कि यही एरर है? तो वही तो टेक्नोलॉजी है, वो फाइल लोड नहीं करेंगे, उसमें काउंट कर लेंगे, देखेंगे कितने लोड किए हैं कितने नहीं किए हैं, उसमें परसेंटेज निकाल नहीं, लेंगे नहीं। वो। नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ऑन एरर वाला। लेकिन वो जो जैसे अपना एरर चेक है ना इसके पहले वाली फाइल में, तो एरर चेक करने के लिए अपन उसको कोई सी कंडीशन देंगे ना कि अगर ऐसा है तो इसको एरर कंसीडर करना है नहीं 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 फाइल नहीं में। नहीं नहीं नहीं। यहाँ हम क्या, मेरा टास्क क्या है, डेटा इंसर्शन डेटा लोडिंग है, ठीक है। हम्म। डेटा लोडिंग है तो सपोज करो हमारे पास ये 5 कॉलम हो गया, ठीक है, 5 फाइल को, 5 हाँ, रो को, 5 रो को हम लोड कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। 5 रोज का कर रहे हम्म। हैं तो हर का वेटेज कितना है, 20% आया, ठीक है। अब हम कह देंगे हाँ, कि एरर में 30% आ रहा है, एरर में 20% से हाँ, ज़्यादा होगा, तो हम मतलब हाँ, हम फाइल लोड को नहीं करेंगे। एरर 20% तक है तो हम हाँ, लोड कर हाँ। देंगे, ठीक है। तो एक एरर आ गया, लेकिन उसको कैसे एक एरर आ पता गया तो लगेगा कि इसमें एरर है? ये एरर होगा। अब देखो तुमको ये समझना, ये तो खुद ऑटोमेटिकली ये इसके इनबिल्ट फंक्शन है ना इनकी, कि मतलब दे अच्छा, वो हैव। इनबिल्ट है, अपने को सेट नहीं करना है हाँ कुछ एरर हमको, चेक करने हाँ के लिए? एयर सेट करने के लिए नहीं, ये इनका अच्छा, अच्छा, ऑन एरर ठीक है। जो इनबिल्ट है, ये अगर ये हम्म। फाइल लोड नहीं हुआ तो वो एक एरर कंसीडर कर लिया, अच्छा, ठीक है। ठीक है। नहीं, ये जो 4th नंबर का स्लाइड है ना अपना वैलिडेशन मोड वाला। हाँ हाँ, तो इसमें जो है वैलिडेशन मोड में अपन इसको बोल रहे हैं कि रिटर्न एंड रोज, रिटर्न एरर्स, रिटर्न ऑल एरर्स। तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये फाइल में एरर है? वही तो बोल रहे हैं जो कि लोड नहीं हो सकती, हाँ जो लोड नहीं हो सकती, हाँ, जो वही लोड नहीं एरर हो, है। अब मान के चलो हमारा, सुनो, हम यहाँ पे दे दिए, हाँ, हम सुनो यहाँ पे हम ये लिए हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ। बैरकर लिए हैं चाहे स्ट्रिंग है। हाँ। स्ट्रिंग है, ठीक है। और हम इंसर्ट जब हम्म। डेटा करवा रहे हैं कोट्स में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो इंसर्ट जो डेटा हो रहा है ये कोट्स में नहीं है, हम्म। समझ रही हो हाँ। तो ये कोट्स या के, फिर स्ट्रिंग की जगह आधा स्ट्रिंग या आधा हाँ न्यूमेरिक है, हाँ न्यूमेरिक है, तो ऐसा उस कुछ समय है। कुछ नहीं लेगा। अब इसमें हम कोई हाँ, मतलब इसमें डेटा है, वो ये फाइल लोड नहीं हाँ। हुआ, इसको काउंट कर लेगा, एरर काउंट कर लेगा वो। हम्म। गॉट हम्म। इट। हाँ, गॉट इट। नाउ फोर्स, फोर्स क्या हम्म। करता है, ये जबरदस्ती फाइल को लोड करा देता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई फाइल हम्म। में स्नोफ्लेक का एक रूल्स है कि कोई भी फाइल अगर लोड हुआ, हमने कर रहे थे ना पुट कमांड कर रहे थे तो लोड नहीं हुआ, स्किप हो जा रहा था, पता है ना, वो एक ही फाइल हाँ, को हाँ, कर रहे हाँ, थे स्किप हो जा रहा था, हाँ, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी फाइल को मतलब पुट कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी इनटू टेबल में कर रहे हैं, रख रहे हैं, उस समय एरर हो गया, स्नोफ्लैक का टेक्नोलॉजी है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को लोड नहीं करता, एक ही चीज़ को दो बार लोड नहीं करता, ठीक है। एक बार लोड हो गया तो वो रिकॉर्ड रखता है अपना मेटा डेटा, तो वो रिकॉर्ड करता है, उस फाइल को अपलोड नहीं करता है। तो उस सिनेरियो में अगर हमको फिर भी अब फोर्सफुली करवाना है तो हम इस फोर्स ट्रू लिख देंगे तो हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। फोर्स अगर ट्रू कर देंगे, टू लोड द फाइल्स रिगार्डिंग वेदर दे हैव बीन लोडेड प्रीवियसली और नॉट, ये डजेंट मैटर, हम लोड करना चाहते हैं फिर से तो वो लोड हो जाएगा, ठीक है। Default is false if you want to specify
प्रॉपर्टी कॉपी कमांड विल नॉट फेल बट इट इज कीप लोडिंग द डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ होगा मतलब इसमें मीन्स, ठीक है, फोर्स का कमांड का ये मतलब है। नाउ साइज लिमिट, साइज लिमिट क्या करता है, ये स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइज इन बाइट्स ऑफ डेटा लोड इन द कमांड व्हेन द थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड। मीन्स हम कह रहे हैं कि किसी सपोज करो हमको किसी इतना ही डेटा लोड करना है, समझ रही हो ना, साइज बाइट इतना ही बाइट्स का डेटा को लोड करना है, तो उस सिनेरियो में इसका यूज करते हैं। साइज लिमिट हम डिफाइन कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। होती है ना कि लिमिट इतना ही डेटा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अरे यस बोलो। यस संतोष। यस। हाँ, नाउ ट्रंकेट कॉलम्स और इनफोर्स लेंथ, राइट। दो कमांड यहाँ है, यहाँ पे बोला गया है कि ट्रंकेट कॉलम ट्रू फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज फॉल्स, एंड इनफोर्स लेंथ इक्वल टू ट्रू और फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है इनफोर्स लेंथ में। इसका क्या काम है, स्पेसिफाई वेदर टू ट्रंकेट टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट एक्सीड द टारगेट कॉलम लेंथ। अगर यहाँ पे हम कर देंगे कि टारगेट कॉलम का लेंथ है वो जाता है ना, पता है ना, याद है ना कि अगर हमने डिफाइन किया है 30, किसी के स्ट्रिंग का वैल्यू 30 डिफाइन किया है, लेकिन हमारे पास डेटा जो है वो 50 साइज का है, तो क्या करेंगे, उसमें ट्रंकेट कॉलम कर देगा। अगर ट्रू ले लेते हैं तो उसमें डेटा को लोड कर देगा ट्रंकेट करके डेटा को, कॉलम को। गॉट इट? अच्छा, ट्रंकेट करके कॉलम को मतलब कि एक नया कॉलम बना देगा नहीं 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 विद नहीं वो जो न्यू वाली लेंथ के नहीं नहीं साथ नहीं में। नहीं 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 नहीं। हम्म, सपोज करो I have taken a number, okay, so I have taken string, okay, चाहे varchar लिया, ठीक है, यहाँ ले लो varchar। अब varchar हमने लिया और varchar टू लिया, और यहाँ हमने डिफाइन किया 5, ठीक है, और मेरा, ठीक है, अब मान के चलो हम ये डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कितने हैं, ये लोड होगा, 7 ये लोड होगा। नहीं। नहीं। तो इस केस में ट्रंकेट काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ट्रिम कर देगा डेटा, डेटा को ट्रंकेट कर देगा और 5 मतलब ही डेटा 5 इसका ले लेगा डेटा, 5 कैरेक्टर। तो अच्छा। बाकी 5 ही बाकी डेटा डेटा लॉस हो लेगा। जाएगा तो। हाँ, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेटा लॉस होता है तो फिर इसको क्यों हम लोग रन करेंगे? कभी कभी होता है कि करना होता है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ होते हैं जो कि देखोगे कि नहीं कि चलो हम किसी कॉलम के वजह से हमको कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस कॉलम को, उसको हम ट्रंकेट कर दिए तो कोई मतलब बनता नहीं है। होते हैं ना, हमारे बिजनेस पे जैसे डिपेंड करते हैं, हमारे डेफिनेशन पे जैसे डिपेंड। जैसे कोई कॉलम है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, जैसे रिमार्क्स। हाँ, तो तो उस सिनेरियो में हमको मतलब उसका कोई उतना नीड नहीं है, तो उस सिनेरियो में वो अगर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और डेटा हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम उस सिनेरियो में, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसी को ही ट्रांसलेट करना है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही होगा? मतलब क्यों, मान लो जैसे उसने बोला क्योंकि कि रिमार्क को। क्योंकि अगर हम अभी जो हम करते हैं, अभी हम 50 लिख देते हैं, यहाँ पे 50 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसके अंदर हमारे माइंड में तो रहेगा कि हमारा डेफिनेशन जो डेटा का 5 डिजिट 5 कैरेक्टर का लोड करने का है, 5 बाइट्स का डेटा ही लोड कर सकता है, ये तो माइंड में हमको है ना, 5 के नीचे ही डेटा लोड हम्म। करना है। अब हम्म। कोई अगर मान के चलो कोई
ऐसा आदमी आ गया, सारा डिटेल दे रहा है अपना, सपोज करो कि कोई फॉर्म बनाया है हमने, सारा डिटेल दे रहा है और उसको मतलब फाइल लोड नहीं होगा, इसका मतलब उस सिनेरियो में हम ट्रंकेट यहाँ पे ले लेंगे, उसमें चलो भाई तुमने 4 ही डाला, 5 डाला, 5 तुम्हारा, 5 तक ले लेंगे, बाकी तुम जो लिखा वो छोड़ दो, बाकी हमको क्या मतलब, बाकी से हम बाकी चीज़ को ले लेंगे, बाकी सारा डिटेल्स तो आएगा। हम्म। ठीक है, तो ये बिजनेस बिजनेस पे यूज होता है। ठीक है, ये क्या तुम्हारा मीन्स क्या तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, कैसा तुम्हारा मतलब नीड है, ये डिपेंड अपॉन, टोटली डिपेंड अपॉन यस। अच्छा अच्छा। ठीक है, यस हाँ। संतोष। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के लगभग सेम ही है। एक इनफोर्स लेंथ होता है, अगर फोर्स इसमें क्या करता है, ट्रंकेट कर देने के लिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर इनफोर्स लेंथ अगर ये भी हो गया तो तुम ट्रू कर दोगे, मतलब ये कर दोगे तो ये कॉपी कर देगा। डिफ़ॉल्ट इज फॉल्स होता है, लेकिन default is false, that means if we specify this option and it and if a text string that exceed the target length, right, column length, the copy command will fail। ये बोलता है कि टारगेट कॉलम में तुम जब डिफॉल्ट इज फॉल्स, दैट मीन्स अगर फॉल्स तुमने ले लिया, ठीक है, यहाँ फॉल्स ले लिया, डिफ़ॉल्ट इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, डिफ़ॉल्ट इज ट्रू, बट तुमने ये पूछता है इंटरव्यू में इनफोर्स लेंथ का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इज ट्रू, एंड द ट्रंकेट कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो इसमें कह रहा है, ये बोल रहा है अगर तुमने फॉल्स ले लिया तो ये क्या करेगा, डेटा अगर इस 5 से ज़्यादा हो जाएगा किसी कॉलम का, वो फेल कर देगा, लोड नहीं करेगा। ठीक है, now अच्छा। now next is purge, right? So purge is used to, right, purge क्यों यूज करते हैं, purge इसलिए करते हैं कि अगर कोई डेटा को हमने लोड कर दिया है, सक्सेसफुली लोड हो गया, तो वो जो होता है ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो जाएगा, मतलब वो, मतलब अगर एक बार लोड हो गया तो जो फाइल्स हमने रखे थे वो डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो होगा मतलब डुप्लीकेशन का मतलब इशू नहीं हो सकता है इसके कारण। ठीक है, नहीं तो इशू होने का चांसेस रहता है, एक फाइल रहेगा और उसका डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया तो वो फाइल को ही डिलीट कर देगा, डेटा ही उस फाइल का डिलीट कर देगा। गॉट इट। यस सर। यस संतोष। नाउ नेक्स्ट, लोड अनसर्टेन फाइल। आपको ऐसा बियर्ड फाइल है, ठीक है, जो कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको लोड करना है, मीन्स जिसका स्पेसिफाइड टू लोड फाइल्स फॉर विच द लोड स्टेटस इज अननोन, द कॉपी कमांड स्किप दीज फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं, जिसका स्टेटस कुछ पता नहीं होता है। तो इसमें इस टाइप के फाइल को करने के लिए ये सब हम देखेंगे बाद में, हम प्रैक्टिकल हम कल करेंगे इसको, तब कर ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा किसी के पास AWS के अकाउंट है क्या, बनाया कभी पढ़ने के लिए? नो सर। नहीं। ओके, तो गाइज जैसे हमको देखो मतलब हम ये जानते हैं कि मतलब
हमको नॉर्मल लाइफ में पता है कि मैंने शुरू से ही बोला कि यहाँ हमारे जो है डेटा कहीं से डेटा कहीं जैसे स्नो डेटा इंजीनियरिंग हम लोग का टास्क है, तो हमको काम भी उसी टाइप से होगा। सपोज करो यहाँ से डेटा को उठा के, ठीक है, यहाँ से डेटा को उठा के इधर लेना है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड सोर्स, ओके, सॉरी, दिस वन इज कॉल्ड सोर्स, राइट, एंड दिस इज टारगेट, राइट, टारगेट है। अब हमको पता है कि हमको सोर्स से टारगेट में डेटा ले जाना है, ठीक है। सेम वे एज अ मीन्स ड्राइवर, राइट, एक गाड़ी है उसके थ्रू हमको डेटा को लेके जाना है यहाँ से, बता, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ड्राइवर उसको लेके जा रहा है, तो डिपेंड करेगा कि तुम कैसे गाड़ी को मूव करवाना चाहती हो, अपनी गाड़ी को कैसे ड्राइव करवाती हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम वे एक थिंक अबाउट द मीन्स हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं और पैसेंजर के बदला में डेटा ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो कैसे डेटा को हमको मैनेज करना है, उसको मैनेज करना है, ये टोटली डिपेंड होता है। हमारे पास एक ही टूल्स है, एक ही कमांड है, कॉपी कमांड, और कॉपी कमांड के अंदर ही इसी सब को हम अगर हमको मैनेज करना पड़ेगा, जो भी एरर आएगा, जो भी कुछ आएगा, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, वो सब होता है तुम्हारा सब पीएल सीक्वल सब में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है, इसी के हेल्प से हमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, so with the help of copy command only we have to manage the data, right। so सोर्स से टारगेट पे हमारा डेटा गया, तो मैंने बताया कि सोर्स जो है, एक तो पहला हमारा लोकल हो सकता है, ऑन प्रीमाइज डेटा, राइट, लोकल होगा, और एक हमारा सोर्स क्लाउड साइड में होगा, क्लाउड साइड में होगा, ठीक है, जैसे AWS हो गया, GCP हो गया, इस सब में के जगह में होगा, ठीक है। तो इसको मूव कराने के लिए हमको दो स्टेज चाहिए होगा। अगर इधर से डेटा मूव करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमको फाइल को कहाँ रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टेज में रखना पड़ेगा। अगर इधर से डेटा मूव करवा रहे हैं, ठीक है, इधर से मूव करवा रहा है, तो हमको सबसे पहले फाइल को कहाँ रखना पड़ेगा, इंटरनल, अपना मतलब लोकल से, तो इंटरनल स्टेज में करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल स्टेज में भी ऑल्सो देर आर 3 टाइप्स, राइट, आई मेंशन यूजर स्टेज, इंटरनल स्टेज, टेबल स्टेज, इंटरनल स्टेज, एंड द नेम इंटरनल स्टेज, राइट। एंड यहाँ पे फिर दूसरा स्टेप्स यहाँ, यहाँ से यहाँ उठा के स्टेज से कॉपी करके टेबल में रखना पड़ेगा। इधर भी पहला स्टेप्स ये हुआ, एंड नेक्स्ट स्टेप्स इज सेकेंड स्टेप्स टू लोड द डेटा, this one. Now again I mentioned there is two way of loading the data. One is at a time bulk loading कर दिया, ये यहाँ से उठाया और इसके भाया इधर से लोड कर दिया। दूसरा स्टेप है कि धीरे धीरे डेटा जा रहा है, धीरे धीरे डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इधर से इम्पॉसिबल है, इधर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर भी पॉसिबल है, इट्स डजंट मीन इधर से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन वैसा नहीं है इसमें, ठीक है, कि दूसरी जगह से कोई एप्लीकेशन एपीआई से वेबसाइट से डेटा आ रहे हो और हम अपने लोकल में रखें और उसको मैनेज कर सकें। तो इधर से ही हमारा डेटा होता है। तो कंटिन्यूस लोडिंग में जो डेटा होता है वो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा
फिक्स टाइम पे आते रहता है, हमेशा आते रहता है और उसको लोड करते रहते हैं। तो उसके लिए स्नो पाइप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज स्नो पाइप, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, स्नो पाइप यूज करते हैं। और इसके लिए ये क्या है, दिस इज वन, बिकॉज वन टाइम लोड मीन्स वी आर लोडिंग एट अ टाइम, दैट इज दिस वन इज बल्क लोड, राइट, बल्क लोडिंग। तो ये है गाइज, हम ये पीपीटी को अभी मैं इसमें मीन्स आई विल शेयर विथ यू गाइज एज वेल। और इसको जाके यूज करना तुम, इसको जाके आज मतलब फाइल फॉर्मेट में जाके डिफरेंट डिफरेंट फाइल को यूज करना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसके पूरा सिंटैक्स इसका लिखा हुआ है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे रखना है, इसको करके इसको चेक करना। फिर हम कल जाके पहले एक बार तो डाउट लेंगे, देखेंगे कि किसने किसने ट्राई किया है, और फिर हम ट्राई करेंगे इसको लोड करने का, मतलब एक एक एग्जाम्पल को हम करेंगे सामने साथ में बैठ के, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो कॉपी कमांड कर रहे हैं ना, मतलब सारा प्रोसेस करने के बाद जो लास्ट में हम कॉपी कमांड कर रहे हैं, उसमें हमको ये सारे फॉर्मूले, मतलब ये सारे कमांड लगाने हैं वन बाय वन, राइट, हाँ हाँ वैसे ना? हाँ, वन बाय वन करके टेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, वन बाय वन करके सारे ये करना है। हम्म, ठीक है। अब तो ये जो है ना, ये तुमको अभी यूज नहीं समझ में आएगा। इसको जब रियल टाइम में तुम अपने प्रोजेक्ट में करोगी तो तब जाके ये कॉपी कमांड ऑप्शन का बहुत यूज लगेगा तुमको। तुमको जब देखोगे कि मेरा डेटा इधर उधर हो रहा है, ऐसे वैसे हो रहा है, दैट टाइम यू विल रियलाइज मीन्स विच कमांड आई एम गोइंग टू यूज, व्हाट मीन्स कॉपी ऑप्शन आई हैव टू यूज हियर। उस समय तुम्हें लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग इतना मतलब ये टेस्टिंग वगैरह करने के लिए उतना समझ में नहीं आता, लेकिन आगे तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या रियल टाइम में क्या यूज है हमारा, क्या मतलब रिक्वायरमेंट है हमारा, और उसके बेसिस पे क्या एरर आ रहा है, और कौन सा कमांड हम लगाएंगे, ये सब करने के लिए होता है, ठीक है। ठीक है। नाउ एनी हैव एनी डाउट्स? गाइज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज़ जाके इंटरनल स्टेज का तीनों ये बनाओ। अभी हम जो करेंगे एक्सटर्नल, पहले हम मीन्स एक्सटर्नल स्टेज करेंगे। अभी मतलब उसके लिए हमको AWS का अकाउंट या GCP का अकाउंट ओपन करना होगा। तो उसमें हम किसी का करवाएंगे GCP का अकाउंट, AWS का, और उसके बाद हम फिर वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके। इसको ना मतलब प्लीज़ जाके इसको कॉपी इनटू कमांड का भी मैं तुम्हारे पे दे छोड़ता हूँ इसको, क्योंकि इसको जाके यूज करना है। इसको एक एक कॉपी, जैसे वैलिडेशन मोड है, इसको जाके चेक करना है, ठीक है। वैलिडेशन मोड को चेक करना है, इसको जाके चेक करना है। फिर है मतलब रिटर्न फेल्ड ओनली को चेक करना है, ऑन एरर को चेक करना है। कुछ एरर कर देना, जैसे कि तुम डाल देना फाइल नेम में कुछ गलती हम्म। कर देना, ठीक है, स्ट्रिंग हम्म। डाल देना, कुछ हम्म। डाल देना, उसमें चेक करना, हम्म। ठीक है। इस टाइप से करके देखो तुम, विथ ओनली विथ योर मीन्स स्पेस इज योर, यू प्ले विथ देम। अगर जितना प्ले करोगी उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, ठीक है, इतना फ़ायदा होगा। ठीक है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं भेज दे रहा हूँ PPT। सुशांत, डू यू हैव एनी डाउट्स? हाँ, नो सर। ठीक है, करो मतलब ट्राई करो, जो भी है अभी है, एक दो दिन और थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद गाइज बहुत मतलब वास्ट वास्ट कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे कि हमें एक्सटर्नल स्टेज से डेटा लोडिंग होगा, तो एक्सटर्नल स्टेज से जैसे हमने मतलब इंटरनल स्टेज से लोड किया, सेम वे है।
लोडिंग करने का। तो सोचो एक चीज़ सीख गया तो दूसरा चीज़ भी आराम से हो जाएगा, सेम वे में हम उस उधर से भी लोड कर सकते हैं डेटा। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेज से लोडिंग करना होगा। उसके बाद जब बनने लगेगा, जैसे स्नो पाइप हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, ठीक है, स्ट्रीम, स्नो पाइप, फंक्शन, ये सब करने के लिए बहुत मतलब ये चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लीज़ गो एंड लर्न इट, मीन्स वीडियो देखो, पीछे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके रखो। कोई भी डाउट है पूछो, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, ओके।